अच्छा जी. So rationalize the denominator. So rationalize the denominator is 21 divided by 3 minus square root 2. तो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है सेम डिनोमिनेटर से विद अ चेंज साइन. तो हम साइन सिर्फ चेंज करेंगे. 3 + √2 और 3 + √2. अगर आपने केब्रिज में ये किया तो एक नंबर सिर्फ इस चीज का है, ठीक है. So 21 times 3 plus square root 2 divided by 3 minus square root 2 and 3 plus square root 2. बेटा the denominator is third identity. तो बेटा जयान 21 × 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों. तो 21 × 3 आता है बेटा 63 प्लस 21 √2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया. 63 प्लस 21 √2 डिवाइडेड बाय 9 - 2. 9 - 2 बेटा 7 आता है. 63 प्लस 21 √2 डिवाइड बाय 7. अब डिवाइड बाय 7 63 के नीचे भी जा सकता है, कटिंग होती है यहाँ पे. प्लस 21 √2 डिवाइड बाय 7. 7 1 7. 7 टाइम्स 9 इज 63. तो 9 प्लस 3 √2 आएगा. 7 7 3 is 21. Survive minus root square. Beta, you remember one thing. This is your identity. This is a minus b and this is a plus b. It is equals to a square minus b square. I hope it's clear now. Abdullah Nasir, good job. Very good. जबरदस्त. जी क्लियर हो गए जी सबको कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पेपर में आएंगे. अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखोगे. सीख लें सीख लें सीख लें. ओके. प्रोबेबिलिटी 1 मार्क के लिए. Vlad has two unbiased dice, each number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vlad rolls the two dice and record the total score. Find the probability that the total score is 13. क्या आपका टोटल स्कोर 13 आ सकता है? 1 मार्क के लिए क्या बनाऊं यार? टोटल स्कोर 13 कभी भी नहीं आ सकता बिकॉज 6 + 5 इज ग्रेटेस्ट नंबर इज 11. सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 0. ठीक है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ओके. The total score can be 11. Yes, it can be 11. Yes or no? जी. Yes, it can be 11. So अब देख लें जी, अगर आप सैम्पल स्पेस डायग्राम बनाते हैं तो बड़ा ही टाइम लग जाएगा. टाइम तो बहुत लगेगा, तो चलो करवा देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो. अच्छा जी. 1 2 3 4 5. ठीक है जी. 6 भी है. अगर सीखना चाहते हैं सब तो देख लें. 6. ये डाइस 1 है, डाइस 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6. ओके. 6 6 are 36. Total और 36 outcomes. 36 boxes बने हैं. And record the total score. So 1 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 1 + 5 6 7. So 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 2 + 4 is 6 and 2 + 5 is 7 and that is 8. 4 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10 11. 7 8 9 10 11 12. Haji, what is the probability of getting a score 11? Out of 11, you can, out of 36, there are two 11s. So it can be 5 6 and 6 5. So that was a shortcut. So I'm listening to the 2 by 36. It was 2 by 36. Simplified form is 1 by 18, 2 marks. Easy? Easy everybody or not? जी ना यार. पेपर 1 में इट्स नॉट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई. ठीक है. Point A and point B has the coordinate. Find the equation of the perpendicular bisector of the AB. Very 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 important. ठीक है.
So A, B are the coordinates. Let's study, everybody. Let's do that. A and B are the coordinates, and my plus 4 and minus 1 would be somewhere here in this quadrant. This is my coordinate of A, and the coordinate of B is plus 8 and minus 3. This is plus 8 and minus 3. Let's say this is my coordinate of B. So that's the sketch of this line, AB. I can see that AB is in the negative direction. So it means that the gradient of this line would be negative. Find the equation of the perpendicular bisector of the line AB. So it means that I am going to find out the equation of this line, which is perpendicular to this line. So equation of AB. So perpendicular line will follow the theorem. We know that M1 into M2 is equals to minus 1. One theorem will be used. Second, midpoint formula will be used to find out the center point, which is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. And the third thing which will be used is y is equals to mx plus c. I cannot find out the gradient unless I have the 2 points available. So my gradient is y1 minus y2 divided by x1 minus x2, or you can write this formula as well this way, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. It's the same thing, it's same होता है तो इसको नाम दे दें x1 y1 x2 y2. चलो जी देख लें जी तो y1 minus y2 minus 1 minus into minus 3 divided by x1 4 minus into 8 minus 8. So minus 1 plus 3 divided by minus 4. So m is equals to 2 divided by minus 4, and 2 divided by minus 4 is minus 1 over 2. This is the gradient of the line AB. Okay, this is the gradient of the line AB. Okay, but we do not use y minus y1 is equals to m into x minus x1. This equation of line is not in O levels. ठीक है? O levels में नहीं है. You have to use the format given. Okay, so we studied this sketch. हमने ये sketch खुद बनाया था अपने आप को समझाने के लिए. तो इसको थोड़ी देर के लिए इधर रख लेते हैं. Okay, so now I have this m1. Let's find out m2. So we know that m1 into m2 is equals to minus 1. So m1 is equals to minus 1 over 2. The shortcut is that m2 would be the reciprocal of 1 by 2. 1 by 2 reciprocal is 2, and change in sign. So gradient m2 would be 2. Now we need midpoint because we are going to find out the equation of the line, the dotted line. So midpoint is x1 plus x2. So which would be 4 plus 8 by 2 comma minus 1 plus into minus 3 divided by 2. So 12 divided by 2 is 6 comma minus 1 minus 3 is minus 4 divided by 2 is minus 2 is the midpoint. So equation of the line would be y is equals to mx plus c. So the value of m is, now you have to put the midpoint and the gradient along the gradient of the perpendicular bisector, okay? This is the gradient of perpendicular bisector. See, in this question, what happened here, everybody, please, I'm summarizing the question. In this question, examiner gave me, this was, the coordinate of this was 4 and negative 1. This was bit of 4 and negative 1. And the coordinate of this was 8 and negative 3. Examiner gave me only these two coordinates. With the help of these two coordinates, I got their gradient, which was y is equals to minus 1 or y by 2. Then I used my theorem to get this gradient, which was 2. Then I use these two coordinates to find out the midpoint. Now I will put that gradient m is equals to 2 and the midpoint in y is equals to mx plus c to get the equation of the perpendicular bisector. So y coordinate is minus 2, y coordinate is minus 2, gradient is 2,
x is 6 and this is plus c. 6 2s are 12, so -2, तो 12 इधर आएगा तो हो जाएगा -12 is equals to c. तो c is equals to -14. So the final answer, जिसका आंसर ये आया है, y is equals to 2x minus 14, ये आंसर राइट है. गुड जॉब फातिमा, आलीन, गुड जॉब फुरकान. आपने -1x कैसे लेकर आए हैं बेटा? यस, वेरी गुड अब्दुल्ला नासिर. अभी ये फॉर्मूला हम नहीं इस्तेमाल करते, अच्छा वो लेवल्स में, ठीक है. चले डन. जहाँ पे गलत हुई है ठीक कर लें, याद कर लें. जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें अपने पास. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तकरीबन हर साल आती है. तो द पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए भी मांगे, तो आपने क्या करना है, पहले मिड पॉइंट निकालना है. मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने ग्रेडियंट निकालना है. ग्रेडियंट निकालने के बाद आपने m2 निकालना है. फिर m2 और मिड पॉइंट को y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट इन करना है ताकि c आ जाए, और आखिर में आंसर लाइन पे लिख देना. मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर एग्जामिनर आपको m मार्क्स ना दे तो, ठीक है. मेथड मार्क. जी जूम आउट कर सकते हैं जी. ये जी मैंने जूम आउट कर दिया. जिसने कर लिया नीचे वाला क्वेश्चन करो, इतनी देर सिंप्लीफाई करो. अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट हो रही है. जिसने कर लिया बेटा नीचे कर, नीचे वाला क्वेश्चन कर लो, शाबाश हरियम. चलेंगे. राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो पहले तो जी बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो बटरफ्लाई कर लें, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम कर लें. तो इसकी लेंथ को एक्सटेंड कर देते हैं इधर से, ठीक है. इसकी लेंथ को इधर एक्सटेंड कर दें. तो इस साइड पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 4x-1, नीचे भी कर दें 4x-1, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2x+1, और यहाँ पे भी कर दें 2x+1. तो डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब बटरफ्लाई कर दें तो आप करें, बस आप मुझे म्यूट कर दें ताकि आपको मेरी आवाज़ ना आए, ताकि आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए. Now you can see that there is a subtraction here. The denominator is same, 4x-1. The left side is 8 times 2x plus 1, 8 times 2x plus 1, and minus 3 times 4x minus 1. Do not expand the denominator, write denominator as it is. Denominator को as it is लिखते जाएं. It is 16x plus 8 minus 12x plus 3. So 16 minus 12x is 4x and 8 plus 3 is 11, divided by 2x plus 1 bracket close 4x minus 1. That is what my final answer is for 3 marks. डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं कीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है. आंसर लाइन के ऊपर लिखे 4x+1. या वेरी गुड अब्दुल्ला नासिर, गुड जॉब, सही जवाब आए हैं. मूसा 28x+5 क्यों आ रहा है आपका? 28 तो नहीं आता ना बेटा, 8 2 16 होता है. चलें जी, ये पेपर हो गया खत्म. दूसरा पेपर खोलें. डिनोमिनेटर एक्सपैंड हो भी गया तो सिर्फ टाइम ज़ाया होगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है. चलें जी, दूसरा पेपर कर रहा हूँ. जी बेटा, ये इस सिलेबस के अंदर ना वो 50 ये 40 मार्क्स का पेपर होता है. ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है. चलें जी, दूसरा पेपर खोल रहा हूँ मैं. लास्ट पेज.
स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें बेटा। Complete the statement. Common factors of 24 and 45 are 1 and बेटा 9 के टेबल में 24 किधर आता है यार? Common factor of 24 and 5 and 45 is 1 and 3 because 24 और 45 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. Work out 2 divided by 0.04. So 2 divided by 4 by 100. 2 multiply with 100 by 4. 200 divided by 4 is 50. बेटा कॉमन फैक्टर ना, common factors of 24 and 45 are 1 and 3. 24 और 45 देखो 3 के टेबल में आते हैं ना. फैक्टर ऑफ 24 क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, आपके पास 12 है, फिर 24 है. So common factor of 24 and 45 are 1 and 3. 24 and 45 they both come in table number 1 and table number 3. चले जी नीचे एक्सपैंड करें जी. क्वेश्चन 3 एक्सपैंड कर लें. क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सपेंशन का आंसर होना चाहिए x पावर 4 माइनस 2x क्यूब. सही आया बेटा? ये पेपर भी सेंड कर दो, करता हूँ भाई. चलें जी मैंने ये पेपर भी सेंड कर दिया. अच्छा जी. कहते हैं एलेक्स इन्वेस्ट 200 एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम नॉन कैलकुलेटर. The simple interest is equals to PRT divided by 100. Work out total interest. So no need to find out the final amount. So 200 rate is 2 and years are 4 divided by 100. 0 0 cancelled. So 2s are 4, 4 4s are 16. That is the answer. जी सर इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर दें प्लीज. कौन से वाला? कोई भी इसमें आएगा, पेपर में आएगा. अच्छा आगे चले जी. ट्राई करें बेटा. दीदी buys 2 books at B each and P magazine at M each. Find an expression in terms of B, P and M for the total number of Didi pays. A very difficult one, sir. Which one? अच्छा ठीक है, सही है. So Didi buys 2 books at B each. So it means that it would be 2B and P magazines at M each. So it would be P magazines at M each. So it would be 2B plus PM. Yeah, MP. It's the same thing. ठीक है? So that would be the answer. So 2B plus PM. कुछ सिंपल चीजें, कुछ मुश्किल चीजें, ट्रिकी, सब कुछ होता है एक साथ. चले जी ट्राई कीजिएगा. रोड्रिगो runs at an average speed of 10 किलोमीटर per hour. Work out the number of minutes he takes to run 5 kilometers. Speed is equal to what? Distance divided by time. Yes or no? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Speed is equals to distance divided by time. इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसको पहले पर मिनट में चेंज कर लो. क्या कंफर्म कर लो बेटा? या सो देख लीजिएगा, इट्स 10 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर in 60 seconds or 60 minutes. Agree? That is what the kilometer per minute speed is. So what would be
हाउ वर्क आउट हाउ मेनी मिनट्स यू टेक टू रन 5 किलोमीटर। तो जब डिस्टेंस आधा हो गया तो टाइम भी आधा हो जाएगा ना। द आंसर वुड बी 30 कंपैरिजन। ओके, 1 mark क्वेश्चन है तो 30 मिनट इज द आंसर। गुड जॉब। Roberto takes 1 hour 30 minutes to run 12 kilometer. Work out Roberto's average speed. So speed is equals to distance divided by time. 1 hour 30 minutes is 1.5 hours. फुरकान, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि पॉइंट चला जाए, तो ऊपर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 15। 120 को बेटा 15 पे डिवाइड करें, 15 का टेबल नहीं आता तो आप लोग आराम से 5 के टेबल पे इसको स्टार्ट करें। तो 15 6 आर 90 और 15 8 आर 120। सो यहाँ पे आएगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। किस किस का आंसर 8 आया? मैंने कहा था टेबल 15 और टेबल 25 याद करो। गुड। ओके, कॉमन एडी फ्रीक्वेंसी कर्व वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ नॉन कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू। ट्राई करें जी, पहले आप लोग ट्राई करें सर। पहले आप लोग ट्राई करें, 2 मिनट के बाद में कर ट्राई करें जी सब। मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। मैं लिख देता हूँ एक दो चीजें। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल है बेटा 1/4, मीडियन है बेटा 1/2 और अपर क्वार्टाइल है बेटा 3/4। चलो अब बाकी अब खुद करो। एग्जैक्ट आंसर देने हैं, नो चॉइस। चॉइस नहीं है आपके पास एग्जैक्ट आंसर देने के अलावा। ठीक है, यू हैव टू गिव मी एग्जैक्ट आंसर्स। ओके, चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। सो मीडियन इज हाफ, सो मीडियन इज हाफ ऑफ 100, सो हाफ ऑफ 100 इज द 50। सो दिस इज 50, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। यूज रूलर, 15, draw these lines, the exact answer is 15। Lower quartile is 1/4, so it is 25th। So this is 25th is right in the center between 20 and 30, so this is the answer। So this is 10, 11, 12, 13, 13.5, so lower quartile is 13.5। And the number of students who took more than 20 minutes to walk on 1 kilometer, so more than 20, so more than 20 कितने बच्चे हैं बेटा? more than 20 ये बच्चे हैं, ठीक है। so more than 20 are, this is 88, so this is more, ये more है। so 100 minus 88, so 100 minus 88 is there are 12 students who spend more than 20 minutes to walk 1 kilometer। Next up is this one, चलो you try करेंगे। 3/11 divide by 1/2, 3/11 multiply by 2/1, 3 2s are 6/11। The interior angle of a regular polygon is 160, interior is 160, exterior कितना होगा बेटा? अभी फैक्ट याद कर रहे हैं। इंटीरियर इज 160, एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। वेरी गुड। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, आप लोग ने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। एक्सटीरियर के फॉर्मूला बहुत आसान है, 360/n। तो n इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। So 360 divided by 20, 0 0 cancel, answer is 18। Good job। ये 20 इसमें है। अच्छा 20 एंगल बताया।
इंटीरियर एंगल फॉर्मूला इज वेरी मच डिफिकल्ट ना, तो वहां पे एन को सब्जेक्ट बनाना मुश्किल हो जाता आपके लिए। द फैक्ट इज वेरी इजी। इफ इंटीरियर इज गिवन, फाइंड एक्सटीरियर एंड देन डिवाइड बाय 360, you will get number of sides. Okay, this is easy way to solve this particular question because this is fact that interior plus exterior is always equals to 180. Okay, चलें जी, ट्राई कीजिएगा जी। द मीन ऑफ 5 numbers is 7. The 5 numbers are 3, 5, 10, 11 and x. Find x please. Write mean formula hint. Hint is mean का formula लिखें please. Mean is equals to sum of all divided by number of observations. So mean of 5 numbers is 7, तो mean 7 है। Sum of all का मतलब है 3 plus 5 plus 10 plus 11 plus x divided by 5, क्योंकि 5 नंबर है तो 7 5s are 35। 3 plus 5 is 8, 10, 18, 18 plus 1 is 29 plus x। 29 को वहां पे माइनस करें तो बिल्कुल ठीक है बेटा, आपके x का आंसर जो है वो 6 आ रहा है। So fifth number is 6। कैन यू क्लियर है सबको? ओके, इंडिसेस एक्टिव हो जाओ भाई, इंडिसेस वाले। This is one term and this one term has this 1 power 2 by 3. So 64 power 2 by 3 with x18 whole power 2 by 3. This 3 is the hint that this 64 is a cube number. So yeah, this is 4 cube. So x and the power will the power multiplied. So 18 twos are 36 divided by 3. Okay, so 4 power 6 divided by 3 and x power 36 divided by 3. Power can be cancelled. So 4 power 2 and x power 12. So 4 square is 16x12. ठीक है, I do not recommend cutting in powers because it will complicate you. ठीक है, complicate कर सकता है। करवाता हूँ स्केटर प्लॉट करवाता हूँ आप लोग को, ठीक है। देख लें जरा इन क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चंस में इसमें मैं कभी भी यहाँ पे बच्चों को रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पे आप कटिंग शुरू कर दो। कटिंग में आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। खुद कटिंग भी खुद ही की होती है और कंफ्यूजन भी खुद ही हो जाता है। चलो भैया आगे चले, चले आगे। नो, आई डोंट थिंक सो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स IGCSE इज वे डिफिकल्ट देन ऑल अदर्स, ठीक है। IGCSE में वी हैव डेरिवेटिव्स, वी हैव टर्निंग पॉइंट्स। सर फ्रैक्शन वाले इंडिसेस भी एक दफा करवा लें सर। वैसे इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन अवर सिलेबस, या इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। मिड पॉइंट निकाल निकाल के अपने डब्बे बनाने होते हैं, कराता हूँ अभी अगर है तो। हाँ जी, सर्कल देख लें बेटा, फिर देख लें बेटा। एंगल एट सेंटर बना हुआ है, ये आपका हो गया माइनर आर्क। बेटा ये एंगल जो है ये 260 है। दिस इज एंगल एट अ सेंटर, दिस इज एंगल एट अ सेंटर। एग्री everybody or not? Yes or no? So we can find out this angle first. This angle is 100. So x would be 100 divided by 2. So value of x is 100 divided by 2, which is 50. Angle at a circumference is half of angle at center. Angle at center का half होता है। हम आप लोगों को देखिए बुक्स में ऐसे पढ़ाया गया है कि यहाँ से यहाँ पे आ रहा होता है तो ये एंगल 50 होता है। तो देख लें यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ का भी स्टार्टिंग एंडिंग सेम है और यहाँ से यहाँ का भी स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, इसीलिए x और x बराबर होते हैं। ओके, क्लियर। 360 में से 100 आप माइनस 260 माइनस करो तो 100 आता है। आगे चलिए। y is the point on the minor arc BYC। अच्छा, this thing is not included in our syllabus तो हम इसको काट देंगे। कहता है y एक पॉइंट है आर्क और माइनर आर्क BYC के ऊपर कोई पॉइंट है लेट सपोज। तो वो कहता है कि वर्कआउट एंगल BYC, तो BY और C ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये y कहता है एक पॉइंट है इसके ऊपर, ये
तो वर्कआउट एंगल बी वाई सी। तो बेटा बी वाई सी कितना होगा? 130, हाफ ऑफ, या इट इज इंक्लूडेड, सो इट इज 130। बेटा एक्स कैसे निकाला यार? ये एंगल आपको 100 मिल गया, ये समझ आया आपको? ये समझ आया आपको? अब ये जब आपके पास 100 आया तो ये एंगल एट सेंटर है, देखो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम ही है। ये सरकमफ्रेंस पे बना है और ये सेंटर पे बना है। ओके, तो ये एंगल डबल होगा और ये हाफ होगा। इसी तरीके से ये 260 डबल है तो ये हाफ है। दिस इज एंगल एट अ circumference एंड दिस इज एंगल एट अ सेंटर। या क्योंकि नॉन कैलकुलेटर के पेपर के हिसाब से ना दो दो एक ही दो दो नंबर की है, बड़े बड़े नहीं है। आईजीसीसी के जो अपने पास पेपर्स हैं, पेपर 4, वो तो करंटली बहुत डिफिकल्ट हैं नए पैटर्न के मुताबिक। अभी तो नए नए पेपर्स आएंगे तो हाँ लर्निंग कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी जरा ट्राई कीजिएगा, आंसर क्या आएगा। √20 प्लस √45 प्लस √80। √20 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 5। √40 45 को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 5। एंड √80 को भी हम लिख सकते हैं 16 टाइम्स 5। तो √4 √5 प्लस √9 √5 प्लस √16 √5, 2 √5, 3 √5, 4 √5। 2 + 3 + 4 is 9 √5। जी, सबका आंसर 9 √5 आया। गुड जॉब। They say that the triangle ABC and PQR are similar. The area of the triangle ABC is 24. Okay. So area of this triangle is 24. And PQ divided by AB is 1 by 2. It means that this is 1 and this is 2. So it means that this is double. Ratio to have a double. Work out the area. So we know that A1 divided by A2 is equals to L1 divided by L2 whole square. So A1 is missing. बेटा एरिया के लिए आप हमेशा स्क्वायर लेते हैं और वॉल्यूम के लिए आप हमेशा लेंथ का क्यूब लेते हैं। ठीक है, तो A1 निकाल लें बस। A1/24। जब लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, देखिए ना, लेंथ आपकी डबल हो रही है तो आपका एरिया जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 24 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो आप खुद ही देख लेना कि 6 आएगा, देखिएगा। L1 जो है 1 है, L2 जो है वो 2 है। तो 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। सो A1 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24। तो देखें 24 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा है? वही 6 आ रहा है कि नहीं? तो ये 6 आंसर आएगा। चले जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे है, लूप 1 के क्वेश्चन हैं। और पहले दो को ब्रैकेट में डालो और x + 9 लिख दो हाफ, स्क्वायर +2 लिख के -9 स्क्वायर लिख देना। जी, 6 इज द राइट आंसर क्वेश्चन। x + 9 होल स्क्वायर +2 -81, x + 9 होल स्क्वायर -79, x + p होल स्क्वायर +t। So the final find the value of p and t. The value of p is 9. The value of t is -79। एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो अभी नया नया दिया हुआ है।
Find turning points. Find turning point by completing square. By completing square. For x coordinate, take this bracket equal 0, x plus 9 equals 0, x is equals to minus 9. For y coordinate, take this t as it is, so y is equals to minus 79. So the turning point of the graph is minus 9 and minus 79. This is turning point, new part. Minus 9 and minus 79. Well done, Ramin. Good job. Okay. चले जी, नेक्स्ट वाला पार्ट जरा खुद करें. y varies inversely as square root x. तो एक्सप्रेशन क्या होगा? y varies inversely as the square root x. तो एक्सप्रेशन क्या होगा? यस, तो ये एक्सप्रेशन होगा आपका वेरी गुड. एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप वैल्यू ऑफ के भी निकाल लीजिएगा. y is equals to k square root x. y is 8, x की वैल्यू 4. 8 is equals to k times 2. तो k is equals to 4. k की वैल्यू 4 आई है. तो y is equals to 4 square root x. Express y in terms of x, so the answer is 4 square root x. Sir, isn't it inverse? Oh yeah, my bad, मेरी गलती हो गई. बस अब मुझे ऐसा लगता है मुझे गर्मी लग रही है. y is equals to k divided by square root x. तो y की वैल्यू जो है 8 है and square root x is 4. So 8 is equals to k by 2. So k is equals to 16. K is equals to 16. So y is equals to 16 divided by square root x. Apologies everybody. चलो, गुड जॉब. यार वो शोर हो जाता है फिर, वो मुझे ऐसा लगता है डिस्टरबेंस होती है, तो इसलिए मैंने पंखा नहीं लगाया. खैर ऑलरेडी आई मीन बेसमेंट में हूँ, तो इतनी गर्मी नहीं है. गिव मी अ सेकेंड, आप लोग देखें जी. यस, आईजीसीएसई वालों, करो ये क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आउट. ये क्वेश्चन नहीं करना. आईजीसीएसई वाले करें पहले ये सवाल. चले जी, आईजीसीएसई वाले क्वेश्चन करें बेटा. आपको ये इग्नोर करें माइनस को. इग्नोर माइनस. x is equals to cos inverse of स्क्वायर रूट 3/2. अब याद करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 किसके बराबर आता था. जल्दी से कॉस का टेबल बना लेना. कॉस का टेबल बनाना जल्दी से, छोटा सा. 0, 30, 45, 60, 90. याद किया था ना. 0, ये 4 से स्टार्ट होता है. 4, 3, 2, 1, 0. बस नजर आ गया कि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, मतलब कॉस 30 है. सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके. अब यहाँ पे रिमेंबर माइनस. अब आप मेंबर कर लो माइनस को. रिमेंबर माइनस. तो फुरकान प्लस का साइन बना के थीटा साइन टैन, और यहाँ पे हो गया कॉस. ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा. कॉस इज नेगेटिव इन साइन एंड टैन एरिया. So 180 minus 30, 150. 180 plus 30, 210. जी, अब क्लियर हुआ जी सबको. नॉन कैलकुलेटर में आ सकते हैं.
जी क्लियर हो गया जी सबको कि नहीं? यस और नो? चलें जी, एक और पेपर करें। एक और पेपर करें। चलें जी। इन पेपर्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मिलता है, आसान भी मिलता है, तो थोड़ा सा आपका वार्म अप हो जाता है। चलें जी, एक और पेपर करते हैं। ये 40 40 मार्क्स के हमने तकरीबन दो पेपर किए हैं और 18 18 क्वेश्चंस थे। चलें जी करें। ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी लगाऊं? इट्स अ स्क्वायर, रिमेंबर स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हमें नजर आ रहा है कि इसमें हमें डायगोनल लगानी पड़ेगी शायद। वी कैन ओनली ड्रॉ वन लाइन ऑफ सिमेट्री हेयर, हम एक ही लाइन लगा सकते हैं। इट्स अ स्लांट लाइन, गुड जॉब। शेड 4 स्मॉल स्क्वायर सो द डायग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का मतलब है कि 360 डिवाइडेड बाय 4 आफ्टर एवरी 90 डिग्री। आफ्टर एवरी 90 डिग्री द एग्जामिनर वांट्स द सेम शेप। So this shape after 90 degrees rotation, after 90 degrees rotation, this same box will come here. Do you agree with me or not? Yes or no? And after 90 degrees rotation, this same box will come here. Agree or not, everybody? Yes or no? And after 90 degrees rotation, this same box will come here. Agree or not? So I 1 2 3, तो मुझे 1 2 नजर आया। Okay, let's do that. तो हम लोगों को इसको जरा शेड करना होगा। तो लेट्स ट्राई टू शेड देम। इनको जरा शेड करते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। क्या ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है? नो, इट्स नॉट 4। इट्स नॉट 4। जी, जी अब्दुल्ला नासिर, माइक ऑन करो। सर यस। सर ये जो दो शेडेड ब्लॉक्स सर इसके साथ ही दो कर ले सर। ओके, अभी देखें जी, आप मुझे मेथड बताएंगे पूरा, समझ आइए कि नहीं? ओके सर। आप मेथड बताएंगे, उसके साथ दो करें, इसके साथ दो करें, दैट्स नॉट द वे। ठीक है? सर क्योंकि ऑर्डर जब ऑफ ये रोटेट रोटेशन, होगा सर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 तभी हो सकता है। यस सर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन तभी 4 हो सकता है जब लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी 4 लगे। एग्री? एग्री? यस सर। ओके, अब बताओ मेथड क्या है आपका? सर एक मिनट। सोच ना, खैर है। यू हैव टू शेड 4 स्मॉल। सर सर यस। सर ये ऊपर दो जो है सर इसमें एक ब्लॉक मतलब एक लाइन छोड़ दे सर उसके बाद सर राइट की तरफ कर ली सर। ये यस सर और इसके नीचे फिर सर। फिर इसके नीचे भी सर। इसके नीचे भी कर दूं? ओके। और सर ये लेफ्ट तरफ सर मतलब जो शेडेड है सर इसके नीचे कर ली सर। इधर? यस सर इसके नीचे भी सर। ओके, क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गई है? क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गई है रामीन? इट्स नॉट 4, इट्स 2। सर तो टू हुए सर। ये तो 2 हो गया, सो इट्स यस रॉन्ग सर। शेडिंग। क्या करें जी? 90 डिग्रीज मैंने आपको कहा है, आफ्टर एवरी 90 डिग्रीज वी कैन यूज ट्रेसिंग पेपर। एग्री? बट अगर वो आपको दे दें तो ट्रेसिंग पेपर में करना क्या होगा कि आपने ट्रेसिंग पेपर को एज इट इज इसी शेप के ऊपर रखना है और आपने ड्रॉ करके इन दो बॉक्सेस को कलर कर लेना है। बिल्कुल सेंटर में कंपास रख के पेज को रोटेट कर देना है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। आपको आइडिया हो जाएगा। अब अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा प्लीज। नाउ प्लीज यूज योर ब्रेन।
Now you can see that this is the line. If I rotate this line 90 degrees clockwise, yes or no, if I rotate this line 90 degrees clockwise, these two boxes, they will come here. Do you agree with me or not? So it means that these two boxes will be shared. Do you agree with me or not, Abdullah Nasir, or not? Yes, sir. Agree? Yes, sir. And these two boxes are empty. If I rotate this line clockwise to the 90 degrees, this line will go like this. So it means that this my box will come here. So I have to shade these two boxes like this. Yes or no? Is the order of rotation now 4? Yes, sir. Yes, now it's 4. सर जो पहले 4 boxes एक मिनट जरा मैं नामिंग का वो गलत क्यों होंगे बेटा? वो गलत इसलिए क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो थी ना वो 2 बन रही थी। देख लो बेटा यहाँ पे खुशी 1 2 3 4 5 I'm drawing the line in front of you in order to show you that how the line can be rotated. खुशी, if I rotate this line 90 degrees clockwise, agree? So what do you think that this line will be somewhere something like this or not? खुशी समझ आ गया आपके नहीं? बिल्कुल आईजीसीएसई में भी है, क्यों नहीं है? चलें जी, राइट दीज इन ऑर्डर ऑफ साइज। चलें जी, करें जी दोनों क्वेश्चन जरा, करें जी दोनों क्वेश्चन। आई थिंक सो कि परसेंटेज बना लें तो शायद इजी हो जाएगा। करें जी, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9/3 is 1/3 which is 0.333 recurring. This is 0.3, this is 0.329, and 3 divided by 8 would be something like this. So that would be 8 threes are 24, 6 will come 0, 8 eights are 48, 8 nines are 50, 8 six are 48, 8 sevens are 56. This is 0.37, 0.37. This is the largest number, bacha. 3 by 8 is the largest. The smaller one is 0.3, which is 30%. Second place is 0.329. And the third place is 9/27. Am I right, everybody? Yeah, okay. Correcting one significant number, 6.98 बन जाएगा 7, 5.86 बनेगा 6, 29.7 बन जाएगा 30 और 8.8 बनेगा 9. So 6 sevens are 42 and 30 minus 9 is 21. So the answer is 2, 21. चले जी, सर तो बस ये हमारा नहीं है जी बेटा। फर्स्ट सिग्निफिकेंट पे राउंड करना है तो 6.98, तो 6 के बाद बेटा 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7। 5.86 को राउंड करना है, 5 के बाद 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 29.72 के बाद 9, तो इधर इसमें 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 30। ओके, यस सर। चलें जी स्टैंडर्ड फॉर्म करें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म करें बेटा, ट्राई कीजिएगा। 6.72 multiply with 10 power 367. Work out this. So 3 multiply with 10 power 4 and 10 square. 3 multiply with 10 power 6. That's the answer here. Okay, write down the mathematical name of the polygon with the 8 sides. It's octagon. Size of one exterior angle अभी पढ़ाया 360 by n. 360 divided by 8. तो 360 डिवाइडेड बाई 8, अभी 8 के टेबल में 36 नहीं आता लेकिन टेबल 4 में आते हैं दोनों। तो 90 डिवाइडेड बाई 2,
So 45 degree is the exterior angle. Good job. F of x is equals to this thing. They say that the solution of f of x is equals to 0 or x is equals to -2 and x is equals to 5. So x square plus bx plus c, it is equals to 0. This is given to me. And the answers I will get, x is equals to -2 and x is equals to 5. So put x is equals to -2. So -2 square plus b into -2 plus c equals 0. So 4 minus 2b plus c equals 0. And x square, तो x की जगह पे 5 डाल दो, तो 5 square plus b into 5 plus c equals 0. 25 plus 5b plus c equals 0. तो 5b plus c is equals to -25. Equation 2, ये equation number 1. तो simultaneous equation से कर ले सकते हैं, yes or no? साइमल्टेनियस इक्वेशन से पॉसिबल है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यप, समझ आ गया बेटा? ये वो आ सर जाएगा -2b plus c is equals to -4। जी बेटा। आपके यूट्यूब चैनल पे वो जो रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री वो कौन सी वीडियो में है? बेटा यूट्यूब चैनल पे बेटा सिमेट्री के टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ है, सिमेट्री। ओके सर, थैंक यू। लेसन नंबर 1 से 85 तक आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, उस पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। देखो कि सिमेट्री ज्योमेट्री के अंदर आ रहा है, तो ज्योमेट्री के अंदर होगा, ज्योमेट्री इज टॉपिक नंबर 4, तो लिखा होगा टॉपिक 4 लेसन नंबर। ओके, ओके सर, थैंक यू। माय प्लेजर। ओके, सो इट्स आपके पास जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, राइट देम, राइट बोथ ऑफ देम। -2b, कल मैं शेडिंग करवाऊंगा क्लास में, डोंट वरी, कल की क्लास में शेडिंग होगा। ओके, तो अगर किसी को नहीं आता तो अभी लेसन देखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर -1 मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2b माइनस सी इज इक्वल टू +4। तो 5b प्लस सी इज इक्वल्स टू -25। ऊपर मैंने -1 मल्टीप्लाई किया कि ताकि दोनों के साइन चेंज हो जाए, तो ये हमें क्रॉस कर दिया, तो ये आ गया बेटा 7b प्लस माइनस इज माइनस -21, तो b इज इक्वल्स टू -3। तो b की वैल्यू -3 आई है। अब सर कुड वी रिवर्स फैक्टराइज यूजिंग x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 5? हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो ये भी है कि x+2 होगा ये, और ये होगा x-5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ यार, ये ज़्यादा आसान था, मैंने लंबा तरीका इस्तेमाल किया। थैंक्स इब्राहिम, दैट वाज आल्सो इजी। वो भी आंसर सेम ही आएंगे। अच्छा ठीक है, ओके। सो सी की बी की वैल्यू -3 आ गई है, तो -3 पुट कर दो इक्वेशन में ताकि सी आ जाए। तो सी इक्वल्स क्या होगा, -2 इंटू -3 प्लस सी इक्वल्स -4। 6 प्लस सी इक्वल्स -4, सी इज इक्वल्स टू -4 -6, सी इज इक्वल्स टू -10। चले जी, गुड जॉब, 2 मार्क्स आया। √18, √18 is 9 times 2, so it is 3√2। That's it. Circles. Ready? Everybody? Ready or not? चलें जी, सोचें कि जी यहाँ पे अब क्या हुआ है। सबसे पहले जी देखें क्या क्या चीज इसमें अवेलेबल है। साइक्लिक कॉर्ड अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यस, इट्स अ साइक्लिक कॉर्ड। This is a cyclic chord, A, B, C, E, and this one. So we got the idea, Alim, that this angle should be equals to 180 minus 70, which is 110. But some piece of 110, 60 is available. So it means that my lower portion is 50 degree. So this part would be 50 degree. Agree? The total is 110.
Okay, if this is 50 degrees, so Aline, we know that this is total two radiuses. So this is facing 50, so this is also face 50. 50 plus 50 is 100. So this is 80. So this is 80. So this is also 100 angle at a line. Agree? If this is angle at a line, so let's see what's the demand of the question. So the demand of the question is EOD. So EOD is found 100. अब EOD दो एंगल है बेटा. EOD 100 मांग रहा है, तो EOA जो है वो 80 है. सर EAB 110 नहीं है. EAB यस इट्स 110. मैंने ये छोटा सा पीस आपके लिखा है, ये 60 प्लस 50 110 टोटल है ना. देखिए 60 पहले से लिखा था मैंने, यहाँ पे ये 50 इस जगह पे लिखा है, यहाँ पे ये 60 है, टोटल 110 ही है. ठीक है. रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक डी द सब्जेक्ट. तो डी को पहले पास करें. 3D minus ED is equals to 1 plus 2E. So D is common. So 3 minus E is equals to 1 plus 2E. तो D इधर ही रह जाएगा, ये ब्रैकेट वहां पे जाकर डिवाइड होगा. Probability. It's completed. There are 40 pens in the bag. Find the number of blue pens. So total probability the probability of blue is 1 by 4. मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि tree diagram is completed. So 1 by 4 into 40, it is equals to 10. Find the probability that Zoe takes a blue pen and then takes a blue pen and then a green pen. It is clear statement. It is blue multiplied with green. So blue multiplied with green, that is clear. 1 by 4 multiplied with 3 by 4. So 3 by 16 is the answer. Good job. Find the probability that Zoe take at least one blue pen. So it can be blue, it can be blue-green, and it can be green-blue. At least लिखा हुआ है. At least के अंदर दोनों भी आ सकते हैं. So blue is 1 by 4 into 1 by 4 plus blue-green is 1 by 4 into 3 by 4. Green-blue is 3 by 4 और blue कितना है 1 by 4. So 1 by 16 plus 3 by 16 plus 3 by 16, it is 7 by 16. 2 marks, 2 marks. जी डन. समझ आया है सबको? चलिए जी. 2 power 4 square root 2 whole power 4. 2 power 4 is 16. अब square root 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 power 1 over 2 हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट 2 होल पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 पावर 1 over 2 के ऊपर 4 आएगा. ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पावर 4 by 2 विच इज इक्वल टू 2 पावर 2. इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 2 पावर 2. तो 2 पावर 2 किसके बराबर है बेटा? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 के, तो ये आ गया बेटा 64. जी क्लियर है बेटा सबको? इन दिस इज 2 power 5 a cube power 5 b 5. 2 power 5 is 32, a power 15 or b 5 answer. In this is tricky case, third identity, it's a complete square. So I can write 3x square whole square, 3x square whole square minus 9y whole square. So it should be 3x square plus 9y and 3x square minus 9y. A plus b and a minus b. Understood everybody or not? Yes or no? ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स में है. ट्राई करना प्लीज इसको. ट्राई दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन आनी चाहिए आखिर में. ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है. डन. आज के लिए काफ़ी है यार. बस अभी आप लोग भी सो जाएं, मैं भी सोता हूँ. रेस्ट करें, सुबह इंशाल्लाह 12 बजे मुलाकात होती है. तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों हम लोग करेंगे, पढ़ाई हमने करनी है. परसों पेपर है, तो कोशिश करें कि सही तरीके से पढ़ें. आई एम ऑल्सो टायर्ड. बस खुद पढ़ें और अपना बहुत ख्याल रखें.
सर ये क्वेश्चन प्लीज दिखा दें, ये देख लें जी क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग को करता हूँ स्टॉप। पहली रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड